request before now I request Major General Shri G.D. Bakshi, Army expert, to speak on Indian art of the war in epic period. Major General G.D. Bakshi has attained Vishisht Seva Medal and Seva Medal. He has commanded his battalion in active operations in Kargil and was awarded Vishisht Seva Medal. Later he commanded a brigade in counter-terrorist operations in the very rugged mountains of Kishtwar and was awarded the Sena Medal for his distinguished services. He subsequently commanded the reputed Romeo Force during intensive counter-terrorist operations in Rajouri, Poonch districts of Jammu and Kashmir and succeeded in pacifying the area. He has served 2 tenures at the highly prestigious Directorate General of Military Operations and was the first BGS IW at Headquarter Northern Command, where he dealt with information warfare and psychological operations. यदि मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी का परिचय पूरा पढ़ूं तो शायद पूरा समय ही प्रेजेंटेशन का निकल जाएगा, इसलिए मैं यही कहूँगा कि इनकी नज़र दुश्मनों पर है, अपने गन से, अपने शब्दों से और अपने आपके साथ पूरी भारत की जनता है, विश्व की जनता है. मेजर जनरल जीडी बख्शी. थैंक like to speak in English so that my friends who have come all the way from distant lands, and I also cater for my friends here, so I will be switching languages, and in any case the slides are in English, so that will help our friends who have come all the way from the United States, from Africa, from Trinidad, and from so many other countries. It's so good to see you. Thank you. Now, देखिए, रामायण एक ग्रंथ है जो युद्ध के ऊपर है, और राम एक योद्धा थे. Ram was a warrior. So before any of you are wondering what a soldier is doing here amongst all the intellectuals, amongst all the men of letters, I am here because I am a soldier. And to that extent, I have a very strong link with Ram. Ram, the warrior. Ram, the warrior god. All right? Before I commence on Ram per se, on Bhagwan Ram per se, I would like to dwell a little time on the theory of incarnation. Right? Now, in history, there are 2 schools of history. There is the Arnold Toynbee school, इतिहास के 2 school, and the Marxist school, हमारे वामपंथियों का, लेफ्टिस्ट का स्कूल. Right? वामपंथी कहते हैं, the Marxists tell us that it is the forces of history that shape events. Individuals are just labels, right? The Second World War was caused by the forces of history, by the Great Depression, and not by Hitler. Hitler was a label. Had it not been for Hitler, it would have been somebody else. यानी इतिहास की महाशक्तियां हैं, कुछ फोर्सेस हैं जो कि हालात बनाते हैं. ठीक है? इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति विशेष का कोई माने नहीं उसमें, वो चाहे कितना भी बड़ा हो. हिटलर नहीं होता तो कोई और नाम का बंदा आ जाता, लेकिन द्वितीय महायुद्ध होकर ही रहता, क्योंकि जो ग्रेट डिप्रेशन हुई थी, जो इकोनॉमिक सत्यानाश हुआ था, उससे हिटलर जैसा ही उभर कर कोई आना था. राइट? दूसरा जो आर्नल्ड टॉयनबी का स्कूल है, the other school, the Arnold Toynbee school, talks of the great leaders. हाँ, हिटलर ने वो शुरू किया, अलेक्जेंडर, हिटलर, सीजर, ये महाशक्ति है, ये महानुभाव है जो कि इतिहास को एक दिशा देते.
ठीक है, वो इतिहास को दिशा देते हैं। जो भारतीय स्कूल है, द इंडियन स्कूल इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज थ्योरीज। और ये थ्योरी कहां से उजागर होती है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम। जब whenever righteousness decline, जब righteousness decline, I incarnate, श्री कृष्ण कहते हैं, I incarnate to redress. There is a situation of historical decline and there is the rise of a great leader. These are two sides of the same coin. It's not just the forces of history, it is equally the personalities. But that personality has to come at the right time. वो शख्सियत तभी कुछ कर पाएगी जब वो ऐसे समय में आए, जबकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। Whenever righteousness decline and the good people suffer, then I arise. By I arise, the avatar arises. This avatar consciousness, ये जो अवतार चेतना है, ये जो अवतरित चेतना है, देखिए इसकी आप श्रृंखला देखें, तो उसके अंदर, तो उस श्रृंखला में शुरू होता है कुर्मा अवतार। You start, if you see the chain of this evolution of avatars, it starts with the tortoise. Sorry, it starts with the fish, the great whale, goes on to the amphibian, the tortoise, goes on to the mammal, the Varaha avatar, Kurma avatar, Varaha avatar, goes on to Narsimha avatar, half man, half lion, goes on to full human form in Parshuram, Ram, Krishna, the Buddha, and the avatar who is to come is Kalki. He is again, by the way, going to be a great soldier. So I think guys like me will be relevant for some time around. Okay. The entire जो progression है अवतारों की, this entire avatar series, J.B.S. Halden says it reflects the evolution theory, the theory of evolution, right? So I have told you how the Indian idea of history combines both the Marxist and the Western school. It also has a touch of the evolution of consciousness. हम खर से नर हुए और नर से नारायण। हम खर से नर हुए और नर से नारायण। From the animal we proceeded to the human. From the human we will proceed to the divine. Each one of us has that potential, that evolutionary potential. So I'd like to preface this thing with this study of the Ramayana. Next, please. You know, in the Vedic age, there were two arms in the armies. वैदिक कालीन युग में दो सेना के हिस्से होते थे। पदिति, इन्फेंट्री, मेरे जैसे पैदल सैनिक, और रथी, महारथी, जो रथ में चलते थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बेसिकली ये दो आर्म्स थी, और जैसे कि मैंने कहा, इसके अंदर वो जब रथ बनाए गए, तो जो आर्य थे उस वक्त के, उन्होंने बड़ा एक रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स क्रिएट किया, आरएमए क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि अगर आप जो है रथ में बैठकर आ रहे हैं, आप मार्च में थकते नहीं। रथ आपको एलिवेटेड प्लेटफॉर्म देता है। रथ में बहुत सारे आप स्टोर कर सकते हैं, बाणों के तरकश, जितने आप पीठ पे नहीं उठा सकते उससे 10 गुना ज्यादा आप रथ में ला सकते हैं, ठीक है। और तलवारें रख सकते हैं, गदा रख सकते हैं, भाले रख सकते हैं, लोड कर सकते हैं अपना जो है ऑर्डिनेंस आपकी वो रथ के अंदर, और आपको एलिवेटेड प्लेटफॉर्म मिलता है वहां पे जो बैटलफील्ड में, ताकि आप ज्यादा दूर देख सके हैं बनिस्पत की जब आप जमीन पे खड़े हैं, और आपको कुछ प्रोटेक्शन मिलती है रथ से। चारों तरफ आपके चद्दर सी बनी हुई है, उससे प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये जो रथ का जो इस्तेमाल किया गया, इससे बड़ा फर्क पड़ा लड़ाई की, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बैटल के ऊपर। और पहले जो सॉलिड व्हील के चक्के वाले रथ होते थे, और उसके बाद जो रथ हैं वो स्पोक्ड व्हील शुरू हुए। 2 घोड़े होते थे नॉर्मली रथ में, संग्रामिका,
कहते थे संग्रामी का रथ, ठीक है। 2 घोड़े होते थे, फिर 4 घोड़े, फिर 8 घोड़े, और उससे ज्यादा घोड़ों का भी वर्णन है, ठीक है, जो इसके साथ जोते जाते थे। और क्या होता था कि जो वैदिक कालीन युग में हर जो कुलपति होता था, हर जो परिवार का सदस्य होता था, जब वो नगाड़ा बजता था युद्ध का, तो वो अपने लड़कों को लेकर वो जाता था, राजा के पास पहुंचता था, और वो पूरा होस्ट असेंबल किया जाता था। और मास जब वो पूरे इकट्ठे हो जाते थे तो वो किसी खुले मैदान में आते थे जहां दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाए। शंख बजते थे, नगाड़े बजते थे, भेरियां बजती थीं, और दोनों एक दूसरे की तरफ चार्ज करते थे। मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, ये मास इनटू वेलोसिटी, दोनों भिड़ते थे। अच्छा नरसंहार होता था, और एक साइड का पलड़ा शाम तक भारी पड़ जाए, रात को नहीं लड़ा जाता था, रात को लड़ा नहीं जाता था। ये वैदिक कालीन युग में। और वेदों में बहुत सारी लड़ाइयों का वर्णन है। दशराज, एक वो कहते हैं कि 100 शंबारा ने 100 जो किले थे, किलों के शहर की नगरियां, उनका सर्वनाश किया। तो मॉर्टाइमर व्हीलर ने कहा कि ये आर्यंस बाहर से आए और इन्होंने सिंधु सभ्यता का सत्यानाश किया। आर्यंस हम लोग कहां से आए? सेंट्रल एशिया से। ये महज बकवास है। क्योंकि जब सिंधु घाटी के वहां पे जो एक्सकवेशन हुई हैं, कहीं लाशें कटी इससे, तलवार से या इससे नहीं मिली। देयर इज बीन कोई 10-15 कोई होंगे अवशेष, स्केलेटन जो वहां पे मिले। सो इंदिरा इज नॉट गिल्टी ऑफ जेनोसाइड, इंदिरा इज नॉट गिल्टी ऑफ जेनोसाइड। और बाय द वे देखिए, आप जब जाते थे, आप जब भी जाते हैं, ये सरस्वती, अभी संगम जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, तो किश्ती में जब आप अपने अस्थि विशेष उनका जो विसर्जन करने जाते हैं पूर्वजों के, पितरों के, तो आपको वो मल्लाह बोलता है कि साहब यहां गंगा और यमुना मिलती हैं, सरस्वती अदृश्य, सरस्वती अदृश्य है। तो वर्षों से हम सोच रहे थे कि सरस्वती मात्र एक कहानी है, लेकिन द सैटेलाइट्स of the Indian Space Research Organization have shown you the tract of a mighty river that once flew, एक बहुत महान नदी जो पहले हिमालय से अरब सागर तक बहती थी, 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा पाट, जिसका सूखा हुआ जो ट्रैक्ट है अभी भी सैटेलाइट्स पे दिखता है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान में, 60% साइट्स जो है वो सिंधु नदी के साथ नहीं, वह सरस्वती नदी के साथ है। द मदर रिवर, जो मां है हमारी सभ्यता की, वो सिंधु नहीं। ये गलत लोगों ने ये अटकल लगाई है, ये अंग्रेजों की लगाई अटकल छोड़ी गई है, माफ कीजिए। This is Mortimer Wheeler and the other British colonial, dispensation that left this. The word Hindu comes from Sindhu. India comes from Indus. But the actual river was not the Indus. It is the Saraswati. And the entire, there is a paradigm shift in Indology taking place today, because the mother river, the cradle river of this civilization is the Saraswati. And the entire, and when this river, in 2900 BC में, ईसा से पूर्व 2900 ईस्वी पूर्व एक बड़ा भारी भूकंप आया। There was a massive earthquake and the region south of शिवालिक्स, शिवालिक्स के दक्षिण का जो इलाका है वो पूरा उठ खड़ा हुआ, ठीक है। और जो यमुना नदी और सतलज नदी, जो दोनों जाके सरस्वती में मिलती थी, the Satluj and the Yamuna used to join the Saraswati and feed it glacial melt water, ठीक है। वो जो यमुना मुड़कर गंगा जी में मिल गई, सतलज मुड़कर सिंधु नदी, इंदस, joined the Indus। और इस तरह जब वो हिमालय का स्नो मेल्ट वाटर मिलना खत्म हो गया, कई वर्षों में ये नदी सूख, पहले तो पैचेस में ये सीजनल स्ट्रीम बन गई, फिर पैचेस में रह गई और फिर ड्राई आउट हो गई।
but the oral tradition of India has kept alive the memory of a sacred river for thousands of years. हैरत की बात यह है कि ये जो नदी थी ये कुरुक्षेत्र होके जाती थी, और आज भी आप पिंडदान के लिए कहां जाना होता है? कुरुक्षेत्र में जाना होता है, क्योंकि सिंधु नदी के तो छोड़िए, सरस्वती नदी वहां से बहा करती थी, और वो हमारी सिविलाइजेशन का क्रेडल है। सरस्वती से आते हैं सरस्वत, और हम लोग सरस्वत ब्राह्मण जो है वहां रहते थे, और हमारा काम था लड़ना हर किसी बाहर जो विदेशी आता ताई जो आता था। खैर आइए, अभी वैदिक कालीन युग से हटकर वैदिक कालीन युग में भी बहुत लड़ाइयों का के बारे में बताया गया है, और सबसे जो फेमस लड़ाई, जैसे महाभारत को हम सब याद रखते हैं, एक लड़ाई जो है वो है दशराजन की लड़ाई, जिसमें 10 राजे मिलकर इकट्ठे होकर वो एक राजे के साथ लड़े, और उसने बड़ी भारी विजय वहां पे पाई। उस वक्त ना केवल सेना, थल सेना थी, नौसेना भी थी। नदियों में हमारे बड़े बड़े जहाज चलते थे। वेदों में 100 किश्तियों वाली, 100 चापों वाली बोट्स विद 100 ओर्स, उनका वर्णन है। और उसके बाद बहुत सारा समुद्र का भी वर्णन है। अगर हम लोग केवल सेंट्रल एशिया के घुड़सवार होते तो इतना ज्यादा जहाजों का, समुद्र की वॉयजेस का, वरुण का, ओशन का आइडिया आपको कहां से आया? तो ये आपके इतिहास में आपको जो अंग्रेज छोड़ गए हैं, अब फेर बदल करने का समय आ गया है, और हमें खुद करना चाहिए इसको। नेक्स्ट प्लीज, अगला। रामायण काल में जब आप आते हैं तो आप देखते हैं कि जो सेना का रूप है उसका परिवर्तन भारी आ गया है। अब आज की देखिए, फौज में भी 4 बेसिक आर्म्स हैं: इन्फेंट्री, आर्मर, आर्टिलरी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। ठीक है साहब, ये 4 बेसिक आर्म्स, फाइटिंग आर्म्स हैं। उस वक्त चतुर्बल सेना आ गई, 2 आर्म से 4 आर्म्स। अश्व, गज, पदिति, रथी। आप समझे? 4 आपके जो हैं वो आर्म्स वहां पे आ गए, और उसके बारे में मैं और आगे चल के बातचीत करूंगा। और रामायण काल में हम ये देखते हैं कि जो लड़ने का तरीका है वो 2 बड़े तरीके हैं: धर्म युद्ध और कूट युद्ध। कूटनीति आपने सुना है ना, ये चाणक्य के बाद में उन्होंने इस पे काफी विश्लेषण किया है। धर्म युद्ध मतलब कि साहब, लड़ाई तभी होगी जब राजा अपना दूत भेजकर दूसरे राजा को आगाह कर दे कि देखिए साहब, ये नहीं होगा तो युद्ध होके रहेगा। इसके बगैर युद्ध नहीं होता था। युद्ध केवल दिन में होता था। कोई भाग रहा है उसको मारा नहीं जाता था, कोई बगैर हथियारों के है, स्टंट है, उसके ऊपर वार नहीं किया जाता था। और कूट युद्ध जो राक्षस पद्धति थी, राक्षस जाति थी, वो इस्तेमाल करते थे। और आज भी एक राक्षस देश हमारे पार भी है, पाकिस्तान। और आप देख रहे हैं किस तरीके का युद्ध पद्धति वो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 बारी उन्होंने हमसे लड़ाई करने की कोशिश करी, खुली और पिटे। और पिछली बार 1971 में उनके देश के 2 टुकड़े हो गए। तो वो समझ गए कि साहब सीधी लड़ाई में तो हिंदुस्तान का पार नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया? आपने एकदम से पलटा और आप कूट युद्ध पे आ गए कि हम सलवार कमीज में, माफ कीजिए, हमारे यहाँ केवल हमारी बहनें ही सलवार कमीज डालती हैं। सलवार कमीज में वो आते हैं यहाँ पे, और कभी बम डाल रहे हैं, कभी इधर पे फायर खोल रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे औरतें, बच्चे, बूढ़े मार रहे हैं। ये कूट युद्ध का तरीका है, कूटनीति, कूट युद्ध, कुटिल बुद्धि। लेकिन जो रामायण के अंदर जो बात की जा रही है, जिस किस्म के युद्ध की बात की जा रही है, वो है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध, इसको प्रक्ष युद्ध भी बोलते हैं। दैट मीन्स जो कि ओवर्ट वॉर। अप्रक्ष युद्ध जो है वो छुपा हुआ युद्ध, जैसे कि हमारे खिलाफ किया जा रहा है, प्रॉक्सी वॉर। प्रक्ष अप्रक्ष युद्ध, ठीक है। और क्षात्र धर्म इस पे किया जाता था। क्षात्र धर्म के अनुसार ये होता था, जिसमें शौर्य, बहादुरी के ऊपर है और नीति के ऊपर ये चलता था कि मैं शौर्य, मैं बहादुरी से जीतूंगा, अपने साहस से जीतूंगा, हिम्मत, शुजात, इससे जीतूंगा और नीति पे चलूंगा।
मैं कोई बेढंगी चीज, कोई गलत चीज नहीं करूंगा, मैं औरतों पे वार नहीं करूंगा, मैं सिविलियंस पे वार नहीं करूंगा। और जो सारी लड़ाइयां होती थी उस युग में, उसमें जो जनता है, अब जैसे कि जब रामायण का युद्ध हुआ लंका में, लंका की जनता को कुछ नहीं किया गया, लंका की सेना को रगड़ दिया गया। ठीक है, राजधर्म जैसे मैंने बताया ये था कि युद्ध भेजने के पहले देखिए राम जी ने भी दूत भेजे अपने, पहले हनुमान गए और वो अच्छा संकेत करारा दे के आए, उसके बाद अंगद को भेजा गया कि जाओ बोल दो कि अगर दे रहे हो सीता, नहीं तो युद्ध होगा। उस वक्त भी रामायण के युग में भी आपकी सेना 4 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। देखिए जब भरत अपने भाई को लिवा लेने के लिए आते हैं, चित्रकूट आते हैं, तो कहा जाता है कि उनके साथ 10,000 हाथी, 1 लाख घुड़सवार, ये सेना वो लेकर वहां पे आए। मतलब हाथी और घोड़े अब आ चुके हैं, जहां पहले केवल क्या होते थे, रथ और इन्फेंट्री, पैदल सेना। अब आपने 2 आर्म्स और कर ली, अश्व और गजा, और धीरे धीरे जो गज है, जो हाथी है, उसका महत्व बढ़ते जा रहा था। लेकिन जब राम जी ने हमला किया लंका के ऊपर, तो ना उनके पास गज थे, ना उनके पास रथी वो लेके गए, वो केवल वानर सेना, केवल और केवल इन्फेंट्री से है। और उसमें जो बड़ा उस वक्त का टॉप इंजीनियर था नल, जिसने पहले तो ब्रिज बनाया, पुल बनाया श्रीलंका को भारत से जोड़ने का, एडम्स ब्रिज जिसको कहते हैं, और आज भी वो सेतु वहां आपको सैटेलाइट से दिखता है, जमीन पर है। कुछ जो बीच में समुद्री तूफान आए उसने तोड़ दिया। तो जो पहला अभियान था वो था इंजीनियरिंग, कॉम्बैट इंजीनियर्स हमारे भी आजकल लड़ाई में सबसे पहले जाके पुल बनाते हैं, फिर हमारी बख्तरबंद हमारे टैंक्स पार होते हैं। तो देखिए ये उसी समय का ये है। वो जो 4 हिस्से सेना के हैं, चतुरंग बल उसको कहा जाता है, चतुरंग बल, ठीक है। कई लोग षडांग बल भी कहते हैं कि इसके अंदर मंत्र मतलब जो एडवाइस है, जो स्टाफ वर्क है, वो भी शामिल है। एक स्टाफ कोर होता था। और कोशा, जब तक आपके पास इकोनॉमिक ताकत ना हो आप कोई लड़ाई नहीं कर सकते। तो इसलिए कई लोगों ने इसको 6 में भी बांटा है, और कई लोग इसको, हमारे जो शास्त्र हैं वो 8 हिस्सों में बांटते हैं, जिसमें चर यानी आपके जो गुप्तचर हैं वो भी शामिल है। इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत महत्व दिया गया है। और रामायण काल में भी देखिए कितने सारे गुप्तचर वो जाके वो दूसरी सेना का टोह लेने की फिराक में लगे हैं। नेक्स्ट प्लीज, अगला। तो जैसे मैंने बताया रामायण काल के समय तक 4 जो सेनाओं के 4 हिस्से हो चुके थे। और ये क्या था कि ये 4 हिस्से, ये लोग, ये जैसे कि देखिए शतरंज की जो खेल है, चौसर की जो खेल है, वो यही व्यूह रचनाओं के लिए की गई थी कि किस तरह 4 वेरिएबल स्पीड maneuver masses, their action could be combined on the battlefield to enhance the slaughter of the other side। और मैं आपको अभी कुछ चीजें दिखाऊंगा जिससे आपको हैरत होगी कि उस समय जो मिलिट्री साइंस थी वो कितनी इवॉल्व थी। क्योंकि उस वक्त जो प्रधान चीज थी वो थे रथ, और जो महारथी थे, जो क्षत्रिय थे, वो कास्ट सिस्टम में देखिए सबसे ऊपर आते हैं। मौर्य काल में रथों का महत्व कम कर दिया गया अलेक्जेंडर से लड़ने के बाद, क्योंकि ये रथ फंस जाते थे, कीचड़ में फंस गए। याद है जब वो चेनाब नदी के पार वो आ रहा था, तो वहां पे उसके जो हमारे जो रथ थे वो धंस गए। तो इसलिए चाणक्य ने रथों को हटा दिया और जो हाथियों का इस्तेमाल शुरू किया। हाथी शूद्र चलाते थे, तो देखिए जो आपके राजा है वो भी क्षत्रिय से हटके मौर्य वंश के राजा कौन थे, शूद्र थे। तो ये कास्ट सिस्टम में भी बदली होती है, जबकि आपका लड़ाई का तरीका बदली होता है। नेक्स्ट प्लीज, अगला। देखिए आज, पहले कहते थे कि कुछ दशक पहले दुनिया 2 कैंप्स में बटी थी, बाइपोलर, रूस अमेरिका, सोवियत संघ अमेरिका, राइट, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब जो है यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, केवल अमेरिका है, लेकिन अब और बहुत सारी शक्तियां उभर रही हैं।
वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड वॉर 1 के पहले, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर्स थे। जो रामायण काल और उसके बाद का जो काल है, महाभारत का काल, भारत 16 महाजनपद में बटा था। 16 बड़े बड़े राज्य थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और जो हमारी सारी जो थिंकिंग है लड़ाई के ऊपर, शुक्र नीति, बृहस्पति नीति, जो आपके पुराण जो है, जिसमें कि आपका अग्नि पुराण, खासकर महाभारत और रामायण, ये सब रचना उस काल में हुई। और उसके आखिर में अर्थशास्त्र की रचना हुई। यानी जो हमारी थिंकिंग ऑफ वॉर है, ये मल्टीपोलर एनवायरनमेंट में है। चीन में भी ऐसा ही हुआ। इवन इन चाइना, वो देयर वाज द पीरियड ऑफ द 6 वॉरिंग किंगडम, जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहे। और उस पीरियड में sun Tzu ने अपनी जो है आर्ट ऑफ वॉर वगैरह बनाई थी। तो ये जो है, ये एक मल्टीपोलर पीरियड है लड़ाई का, जिसमें खूब जंग आपस में होती रहती थी, अलाइनमेंट्स जल्दी जल्दी बदलती रहती थी। और ये चतुरंग बल का जो मैंने बताया आपको, चैरियट, रथ, वॉर एलिफेंट्स, गज, हॉर्स कैवलरी, अश्व और इन्फेंट्री पद्धति, इस सेना का निर्माण हो चुका था, रामायण काल में हो चुका था। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये है देखिए 16 महाजनपद जो ऊपर दिखाए हैं, कोशाल, नरेश, वंग देश वगैरह वगैरह, ये 16 महाजनपद थी भारतवर्ष में। अगला, नेक्स्ट प्लीज, विल गो लिटिल फास्ट। जो उस वक्त एक खास चीज जो खासकर भारतीय है, वो है व्यूह, व्यूह रचना, ठीक है ना। व्यूह रचना से लोग समझते हैं कि एक ज्योमेट्रिकल शेप जो कि सेना लेती थी लड़ाई के लिए। बट ये ना सिर्फ एक फॉर्मेशन थी ज्योमेट्रिकल या एनिमल शेप, ये एक बैटल ड्रिल भी इसके अंदर शामिल थी। और मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, जिस तरह हम जब शतरंज खेलते हैं, जो अच्छे शतरंज के खिलाड़ी हैं, वो 10 मूव आगे सोचता है, 5, 7, 6 मूव आगे सोचता है। मैं ये करूंगा, वो ये करेगा, वो ये करूंगा, मैं ये करेगा, इस तरह वो 6-7 मूव आगे सोच के चलता है। तो जो व्यू रचना थी, एक तो वो चौसर की गेम से शुरू की गई। वो चौसर का लगा के उन्होंने व्यूहों का निर्माण किया कि किस व्यू से हम ज्यादा अच्छे लड़ सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसमें आज भी ये व्यू इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और जर्मन्स ने द्वितीय महायुद्ध में बिल्कुल वही व्यू रचना को इस्तेमाल किया जो कि महाभारत में लिखी। हैरानी होगी आपको जानकर, और मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट प्लीज, अगला। ये देखिए, अर्ध चंद्र व्यूह, चांद, आधा चांद के जैसे सेना ऐसा शेप बनाती है ताकि जो दुश्मन हमला करते हुए आए वो बीच में फंसे, ठीक है। इसको बोलते हैं अर्धचंद्र व्यूह, ठीक है। 1965 में पाकिस्तान की जो फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन थी, उसने असल उत्तर के इलाके में जब हमला किया तो हमारी सेना ने ठीक इस तरह हॉर्स शू शेप फॉर्मेशन, घोड़े की नाल कैसी लगती है, चांद जैसी, अर्धचंद्र, बिल्कुल यही फॉर्मेशन लगाई थी। पाकिस्तान की आर्मर्ड डिवीजन यहां आई, उन्होंने सारी जो वहां पे नहरें थी उनको तोड़ दिया, सारा दलदल बन गया, वहां पे दलदल बन गया साहब, पूरा धस गई उनके टैंक। और मारे ताबड़तोड़ हमारे टैंकों ने, वो दिल्ली में नमाज पढ़ने की बात कर रहे थे और वहां पे सवा सत्यानाश हो गया पाकिस्तान की फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन का। और सिर पकड़ के बैठ गए वहां अयूब खान साहब और जनरल मोहम्मद मूसा खान साहब, ठीक है। तो उस वक्त हमारी सेना ने अर्धचंद्र व्यू का इस्तेमाल किया था, अर्धचंद्र व्यू। और ये हमारी रामायण महाभारत में इनका, खासकर महाभारत में वर्णन। अगला देखिए, नेक्स्ट बेटा, ये है मकर व्यू। अगर किसी ने, आपने चक्र व्यू तो सबने सुना है कि अर्जुन जिसमें मर गया वो पूरा गोल, इसको हम बोलते हैं नोडल पॉइंट डिफेंस। जो यहां सेना के हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। नोडल पॉइंट डिफेंस, जब आप रेगिस्तान जैसी जगह में हैं जहां दुश्मन कहीं से भी हमला कर सकता है, ये तो आप तब लेंगे जब पता है साहब वो ऐसे आ रहा है। जब वो कहीं से भी आ सकता है तो आप गोल डिफेंस लेते हैं। या किसी को घेर के मारना है, जैसे अभिमन्यु को मारना था तो चक्रव्यूह, और चक्रव्यूह तोड़ना है तो उसका तोड़ क्या है, ये देखिए मकर, जिसको आजकल चीनी बोलते हैं असॉल्ट इन ह्यूमन वेव्स।
एक के बाद एक के बाद एक के बाद दुश्मन की लहर पे लहर आती जाए जब तक कि वो तोड़ ना दे आपका। बिल्कुल मकर व्यू, यानी वो गोल चक्कर भी है तो उसको एक पॉइंट पे आपने अटैक किया, तोड़ के अंदर घुस गए। ठीक है, इसको बोलते हैं मकर व्यू, और ये आजकल चीनी खासकर इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, इसको देखिए शकाट व्यू। शकाट मतलब अपनी जो ये बैलगाड़ी होती है ना, उसका एक्सल देखिए कैसा होता है। अगर उसके पहिए निकाल दे तो एक्सल, उसको शकाट व्यू बोलते हैं। टी शेप फॉर्मेशन, ठीक है। और अगला देखिए, अगला, हाँ ये देखिए टी के आगे एक चक्र, एक मतलब स्क्रीन विच ऑपरेट्स इन फ्रंट एंड ए टी। ये टी फॉर्मेशन को ध्यान से देखिए, ये महाभारत में कई बार इसका वर्णन आया है। और अब मैं आपको दिखाता हूं, नाउ आई विल शो यू इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द जर्मन पैंजर्स adopted this T-shaped formation in North Africa, और ये मैं आपको समझाता हूं। अगला दिखाइए, ये देखिए, this is with tanks, infantry, mechanized infantry and artillery, Panzer Grenadiers के साथ। ये भी देखिए टी बनाया है। इसमें दोनों तरफ पे जो छोटे बक्स हैं दाएं और बाएं, उसमें टैंक हैं। चारों तरफ जो है वो जो बनाई है वो है एंटी टैंक गन्स ने बॉक्स बनाया है, और उसके अंदर आपकी सारी लॉरियां हैं जिसमें आपका असला माल, एमिनेशन वगैरह, खाना पानी सब उसके अंदर होता है। ये जर्मन लागर। अब आपको मैं थोड़ा देखिए मजेदार चीज दिखाता हूं, आपको भी हम थोड़ा जर्नैल बना देंगे जब तक आप ये हॉल छोड़ के जाएंगे। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, अगला। हाँ, अब देखिए मान लीजिए दुश्मन इस टी के सामने आए, ठीक है। तो जैसे ही आपने दुश्मन को देखा, आपने ये टी बना लिया। ये जर्मन रोमेल किया करता था, फील्ड मार्शल अरविन रोमेल, ठीक है। आपने टी बना लिया था। अब दुश्मन के पास क्या चारा है? एक वो सीधा आ सकता है, एक वो बाएं से हमला कर सकता है, या दाहिने से हमला कर सकता है। मान लो दुश्मन ने चुना बाएं से हमला। अगला दबा दीजिए, दबाइए। हाँ, अब देखते जाइए, देखिए वो बाएं से हमला कर रहा है, फ्लैंकिंग हमला कर रहा है। ये पीछे हट गया, इसने आने दिया बीच में, ये यहां से आके ये। अब जहां से भी आए आपको तीन तरफ से वार होगा। आप समझ रहे हैं? आप चाहे सीधा आ जाए तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, आप इस तरफ से आए तो ये दोनों यही चीज यहां कर देंगे। जहां से भी आप आए आपको तीन तरफ से घेर के मारेगा। सिंपल, सिर्फ एक शब्द बोलना है, एनिमी अटैकिंग लेफ्ट, एनिमी अटैकिंग राइट, या ईस्ट या वेस्ट, जो भी आप बोलना चाहते हैं। और एक शब्द से सारी सेना को पता है व्हाट टू डू। यू अंडरस्टैंड? इट वाज नॉट जस्ट अ ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन, इट वाज अ फॉर्मेशन कंबाइंड विद अ बैटल ड्रिल। ये ना केवल एक रूपरेखा थी जो आपकी सेना अख्तियार करती थी, बट एक सोची समझी ड्रिल। जहां से भी आप आए आपको तीन तरफ से मार पड़ेगी, चाहे आप इसको हाथी घोड़ों रथों से खेले, या आप इसको टैंकों, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, तोपखाने के साथ करें, नतीजा वही होगा। सिंगल कैने मनूवर, डबल कैने मनूवर। ये तो देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कितना देखिए जो है हमको अभी भी हम अपने शास्त्रों से सीख सकते हैं, जो कि आज के दिन में आप मैदान जंग में लगा के जीत सकते हैं। ये जो है प्रक्रिया अगर आप करें तो आज की आधुनिक टैंकों की लड़ाई में आप दुश्मन के होश हवास के फाख्ते उड़ा सकते हैं। और जर्मनों ने ये किया। ये टी फॉर्मेशन कहां से उनके आइडिया में आई, ये देखिए बड़ी हैरत की बात है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत अध्ययन किया हमारे शास्त्रों का, उससे निकाला, बट ये फॉर्मेशन उनके पास थी और बखूबी इस्तेमाल किया उन्होंने। जो भी नॉर्थ अफ्रीका में लड़ाई हुई, जो ब्रिटिश टैंक, अमेरिकन टैंक, जो भी टैंक्स थे, वो तीन तरफ से उनको चोटें लगी थी। दे हैड बीन हिट फ्रॉम 3 साइड्स। ये व्यूहर ड्रिल्स के साथ ये सब होता है। तो देवियों और सज्जनों, मैंने केवल एक आपको ग्लिम्स दिया है कि एपिक काल के अंदर भी, रामायण काल, महाभारत काल में भी जो युद्ध नीति है उसका कितना विकास हो चुका था। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक छात्र भाव, अब चाहे बौद्ध धर्म की वजह से हुआ, किससे हुआ,
इतनी शक्तिशाली मौर्य सेना थी, ठीक है, और वो सारे की सारे हम लोग धरे रह गए और 1000 साल हम पे विदेशियों ने राज किया है, चाहे हूण, यवन, सीथियन, साकाज, मंगोल, उज्बेक। मुगल कौन है? उज्बेकिस्तान अभी हम लोग होके आए, ठीक है। ये सारे के सारे आता, हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोने की चिड़िया तू कहां उड़ गई? क्या क्षीर के तेरे सागर सारे तेरी धूप में झुलस गए? हे शक्ति तू ही हमें छोड़कर चली गई, तभी तो ये यवन, ये हूण, ये गोरे जंगे लाट तेरा मांस नोच नोच कर खा गए। आपका सारा सोना ऊंटों पर लाद कर सब बाहर ले गए हैं, क्योंकि आप लोग लड़ने वाले अपने आप में क्षात्र भाव की कमी है। और आज मैं यहां जो दिग्गज नेता आए थे, मैं उनसे यही बात करता हूं बार बार, अपने बच्चों में वो क्षात्र भाव लगाइए। अगर आपने साधना करनी है तो आप वीर भाव साधना कराइए अपने बच्चों को। आप जानते हैं वीर भाव साधना कहां होती है? शमशान भूमि में। धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। धर्म का असली क्षेत्र कौन सा है? कुरुक्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र। देखिए हम सब ने पढ़ा है, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस शरीर के मर जाने से ये आत्मा का कुछ नहीं होता। नैनम छंदंती शस्त्राणी, कि इसको शस्त्र काट नहीं सकते, इस आत्मा को, इसे हवा उड़ा नहीं सकती, इसे पानी जल डुबो नहीं सकता। क्या आप इसको मानते हैं? आप इसको मानते हैं? आप सब कहेंगे हाँ साहब ये बिल्कुल सच है। जरा लड़ाई के मैदान में आ जाइए, हम देखेंगे आप कितना सच मानते हैं, कितना नहीं मानते। हमने लोगों को थर थर कांपते भी देखा लड़ाई के। अगर आप वाकई मानते हैं कि साहब नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं आऊंगा, फिर आऊंगा, चाहे 100 लाशें मैं और लगा दूं, लेकिन इनकी ऐसी तैसी करके जाऊंगा। तो ये देखिए, ये क्षात्र भाव जो है इसकी आजकल बहुत कमी है। क्योंकि आप देखिए कितने हमारे बच्चे कॉलेजों में मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मिलिट्री साइंस पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, वेपन्स टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, रॉकेट साइंस, कितने कितने कर रहे हैं। हम सारे के सारे दे दी हमें आज बिना खड़क बिना ढाल, बकवास। कोई बिना खड़क ढाल बिना नहीं मिली आपको आजादी, कोई बिना खड़क बिना ढाल के नहीं मिली आजादी। आपको आजादी मिली क्योंकि एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज, 60,000 की फौज, जिसमें से 26,000 शहीद हो गए। क्या आप इसको अहिंसा बोलते हैं? 60,000 की फौज में से 26,000 मर मिटे, उनका कहीं नामो निशान आपने नहीं रहने दिया। कोई एक वॉर मेमोरियल नहीं है उनके लिए, क्योंकि एक छात्र भाव खत्म करके हमारे में ये नपुंसकपना जो ला दिया गया है कि कोई तुम्हें एक गाल पे चांटा मारे दूसरी गाल आगे करो। ये महाभारत में लिखा है, ये नहीं लिखा। महाभारत में लिखा है कि एक गाल पे चांटा मारे उसके हाथ पैर तोड़ दो। चीनी कहते हैं इफ अ मैन स्लैप्स यू वंस इट इज हिज मिस्टेक, बट इफ ही स्लैप्स यू ट्वाइस इट इज योर मिस्टेक। कि साहब अगर आदमी कोई आपको चांटा मारे उसकी गलती, आप उसके हाथ पैर तोड़ दोगे, बट इफ ही अगर दूसरी बारी चांटा मारता है तो गलती फिर आपकी होगी, गलत जगह सीटी ईटी बजाई होगी आपने, तभी तो मार खा रहे हैं आप खड़े होकर। भरे बाजार में कौन मार खाता है? वही जिसने गलती की। तो यू हैव टू गेट दैट फाइटिंग स्पिरिट बैक, और उसके लिए प्रेरणा लेने के लिए जर्मनों के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने इतिहास को देखो, अपने इतिहास को देखो। और मैं फिर कहता हूं राम एक योद्धा थे, कृष्ण एक योद्धा थे, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो लड़ाई के मैदान में लिखा गया, रिटन बाय अ सोल्जर फॉर अ सोल्जर एंड फॉर ऑल सोल्जर्स फॉर ऑल टाइम टू कम। और आज भी हम उससे इतना सीखते हैं। हमें प्रेरणा लेने के लिए अपने इतिहास में झांकने की जरूरत है, वो शक्ति को वापस उठाने की जरूरत है, वीर भाव साधना की जरूरत है। हमारे बच्चे डिस्को डांसिंग में पसीना निकालें या डांडिया डांस में पसीना निकालें या कराटे बॉक्सिंग में, हम चाहेंगे कि वो इस क्षेत्र में आए, वो युद्ध कला सीखें, उनमें वो कड़कपना आए, वो सेना की ओर जाएं। और जो बचा हुआ पाकिस्तान है उसके साथ महाभारत आ रही है। आखिरी में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबसे पहले मैं गुमाश्ता जी को
बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपके सौजन्य से मुझे एक बार फिर अपनी संस्कार धानी के दर्शन हुए। कल शाम को मैं आरती सुनने गया और जो रामायण का आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया है, मेरे लिए एक बहुत पर्सनल मीनिंग रखता है। हमारी माता श्री, वो अब नहीं है, रोज घंटों रामायण का पाठ करती थी और उनकी आंखें झरझर बहती थी। आज जब मैंने सुना वक्ताओं को रामायण के बारे में बोलते हुए, तो आज माता श्री की याद आ गई। मैं बहुत आभारी हूं आप सबका। धन्यवाद। जय हिंद और जय श्री राम। शौर्य और नीति के विशेषज्ञ